Hello guys, I welcome you all online to this channel of Unacademy CSR Life Sciences. So हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज़ और आज के टॉपिक में विल बी सीइंग हॉक्स जीन डेवलपमेंट. सो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट यू नीड टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर पे जाके यू नीड टू इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट योर गोल. इन द सेलेक्ट योर गोल कैटेगरी यू नीड टू सेलेक्ट CSIR. So you need to select CSIR UGC Net. So जैसे ही आप CSIR UGC Net select करते हैं, so you'll be getting access to all the courses from the top educators that is available for free. And if you want to go for more, then you need to go for the plus subscription. The plus subscription is available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 months. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months of subscription because ये एक ideal amount of time है that is available for each one of you to clear the exam. So this thing is there. So you can use my referral code. My referral code is HY10. So you can use my referral code and uh, you can use my referral code for getting 10% off and subscribing to this course. So जैसे ही आप करेंगे you need to proceed to the payment and payment can be done either by debit card, credit card or by EMI. And these EMI are all no cost EMI. You can also do the payment by net banking. So this is there. So मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेट कोर्स फॉर लाइफ साइंसेज CSIR बैच 1 ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम जनवरी 25. सो यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिसमें हिमांशु यादव हैं, दैट इज़ मी, नेहा तनेजा मैम, वीरेंद्र सिंह सर, मोहम्मद सलमान सर, वी ऑल आर टेकिंग योर क्लासेस एंड दिस इज़ द अल्टीमेट कोर्स ऑफ लाइफ साइंस फॉर CSIR बैच 1. तो दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 25 और वहाँ पे मैं सिल्लर ऑर्गेनाइजेशन ले रहा हूँ. बाकी एजुकेटर्स भी बाकी फैकल्टीज़ भी आपकी अलग अलग कोर्सेज ले रही हैं. सो इन कोर्सेज में आप अपनी ज्वाइन कर सकते हैं और इन कोर्सेज से आपका ये फ़ायदा होगा बिकॉज दीज आर द बैच कोर्सेज. तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ एक जगह पे कवर कराई जा रही है. सो यू कैन अटेंड दीज कोर्सेज एंड गेन बेनिफिट एंड प्रॉब्ली यू कैन डिज़ाइन एंड वर्क ऑन द शेड्यूल ऑल्सो. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. यहाँ पे हॉक्स जीन का डेवलपमेंट होगा. सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हॉक्स जीन कैसे हमारा हेल्प करती है. सो पैरालॉगी ग्रुप बेसिकली ये हॉक्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. So paralogy group, they are the Hawkes complexes. They are the natural clusters of Hawkes gene on a chromosome. And order relates to the duplication that have occurred within a chromosome region. And orthology ये क्या होता है? ये appropriate gene है in the 4 different Hawkes complexes. So यहाँ पे gene होती है with maximum sequence identity. And orthology is same gene in different species. Okay? So orthology का क्या मतलब होता है? जहाँ पे same genes होते हैं in different species. अब आते हैं हम लोग होम्यो बॉक्स पे. सो होम्यो बॉक्स बेसिकली हाईली कंजर्व्ड 180 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है. ठीक है, ओनली डीएनए के पास होम्यो बॉक्स होता है. और होम्यो डोमेन ये प्रोटीन प्रोडक्ट है होम्यो बॉक्स का. और प्रोटीन्स जो कि इनकोड की जाती हैं बाय द होम्यो बॉक्स जीन्स, दे आर द होम्यो डोमेन प्रोटीन्स. सो होम्योटिक जीन्स दे एक्ट इन अ सेल ऑटोनॉमस मैनर and they are the essential gene encoding a body part or segment. So a gene whose mutant allele causes replacement of certain body part with a body part normally found elsewhere. ठीक है, so this is the part of homeotic gene and it is best described by homeotic mutants. तो जहाँ पे transformation आता है. So mutation causes transformation of one body part into another body part. And only one mutant affects the phenotype. So all homeotic genes are homeoboxes, but not all homeoboxes are homeotic genes. So homeotic genes in the HOM, Drosophila and HOX vertebrate complexes are all homeodomain transcription factors. Okay. So homeotic genes in the HOM, Drosophila and HOX vertebrate complexes are all homeodomain transcription factors.
सो हॉक्स जीन क्लस्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं. सो हॉक्स जीन क्लस्टर बेसिकली दे आर द सबसेट ऑफ होम्योबॉक्स जीन एनकोडिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बेसिकली द होम्यो डोमेन. और ये अराइज होते हैं बाय राउंड्स ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एंसेस्ट्रल जीन, एंड दिस इज फॉलोड बाय फर्दर डुप्लीकेशन ऑफ दैट क्लस्टर इन मैमल्स. सो जो पैरालॉगस ग्रुप्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मोस्ट सिमिलर मेंबर्स ऑफ ईच क्लस्टर इन द सेम क्रोमोसोम. सो माउस की पैरालॉगस ग्रुप्स होते हैं 13. ओके. सो होम्योटिक जीन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन स्पेसिफाइंग रीजनल आइडेंटिटी अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. सो हाउ द हॉक्स जीन कैन स्पेसिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द एक्सिस. ओके. किस तरीके से हॉक्स जीन स्पेसिफाई करती हैं आइडेंटिटी ऑफ द एक्सिस में. सो ये देखिए, जीन एक्टिविटी कैन प्रोवाइड पोजिशनल वैल्यूज. ओके. सो जीन एक्टिविटी कैन प्रोवाइड पोजिशनल वैल्यूज. तो जीन एक्टिविटी प्रोवाइड करती है पोजिशनल वैल्यूज़ को. सो किस तरह से पैटर्न जीन एक्सप्रेशन का स्पेसिफाई करता है, तो जैसे मान लीजिए जीन के 4 डिस्टिंक्ट रीजन है. देर इज़ जीन 1 जिसका रीजन है W, देर इज़ जीन 2 जिसका रीजन है X, देन देर इज़ जीन 3 जिसका रीजन है Y, एंड देन देर इज़ जीन 4 जिसका रीजन है Z. सो W जो टिश्यू है उसको खाली जीन 1 चाहिए, ठीक है. बल्कि Z के लिए Z जीन जो है आपकी Z जो टिश्यू है इट नीड्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन 1 2 3 4. सो सारी जीन्स का एक्सप्रेशन होना है अगर इसको सही करना है तो. ओके. अगर Z टिश्यू का सिंथेसिस करना है तो जो पैटर्न होता है एक्सप्रेशन का वो डिफाइन करता है 4 डिस्टिंक्ट रीजन, जैसा कि मैंने बताया. सो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कभी दे दिया क्वेश्चन इन्होंने बनाकर, और आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा कि जीन एक्टिविटी प्रोवाइड करती है पोजिशनल वैल्यूज़. ओके. तो जीन एक्टिविटी प्रोवाइड करती है पोजिशनल वैल्यूज़. तो ये वाला साइड हो गया एंटीरियर, ये वाला साइड हो गया पोस्टीरियर. यहाँ से एंटीरियर से पोस्टीरियर तक जाता है. तो जो पैटर्न हो गया एक्सप्रेशन का वो डिफाइन करता है 4 डिस्टिंक्ट रीजन, एंड दैट इज कोडेड फॉर बाय द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. So different gene expression produces different interaction, which is the specification of anterior posterior region. All right. So this is a pattern of expression that defines 4 distinct regions, and it is coded for by the expression of different combination of genes. So different gene expression produces different interaction, which is the specification of anterior posterior genes. Okay. सो हॉक्स जीन कैसे कवर करती है पैटर्न का इन केस ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये समझना है थोड़ा सा. जस्ट अ मिनट.
सो जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द वर्टिब्रे वो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दैट द आइडेंटिटी ऑफ सोमाइट्स डिफर अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. So Hox gene are expressed along the anterior posterior axis in mouse. So first the anterior Hox gene are expressed in early gastrulation as mesoderm begins to leave the primitive streak. So जो anterior gene होती है that is expressed first and the posterior pattern develops later. So जो more posterior Hox gene होती हैं they turn on the development as development continues. So there is defined pattern of Hox gene expression that are seen in the mesoderm and the neural tubes. So for different antibody to stain, so there are arrowheads indicated the anterior boundary of the expression of each gene with the neural tube. Okay. तो ये हॉक्स जीन का पैटर्न है जो सोमाइट्स के केस में प्रेजेंट होता है. सो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है एज गैस्ट्रुलेशन प्रोसीड टू? यस. क्या हॉक्स जीन प्रोवाइड करते हैं कोड फॉर रीजनल आइडेंटिटी? यस. सो देर इज लॉट ऑफ ओवरलैप बाय एवरी रीजन बट ईच रीजन हैज डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ हॉक्स जीन एक्सप्रेशन. सो जो मोस्ट एंटीरियर हाइंड ब्रेन होता है वो एक्सप्रेस करता है हॉक्स A1 एंड हॉक्स B1. सो पोस्टीरियर रीजन सारे एक्सप्रेस करते हैं हॉक्स जीन विच इज़ द ओवरलैपिंग जीन. सो the same chromosome, that is the Hox gene, is different in the spatial, in the temporal express in the anterior posterior axis. Okay. तो हॉक्स जीन इन्वॉल्व होती है इन कंट्रोलिंग रीजनल आइडेंटिटी. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हॉक्स जीन्स प्रोवाइड करते हैं पोजिशनल आइडेंटिटी एंड हॉक्स जीन एक्सप्रेशन इज कंजर्व बिटवीन माउस एंड चिक. सो डिफरेंट हॉक्स जीन रेगुलेट स्पेसिफिक टिश्यू रीजन. सो ये वाला तो हो गया. अब एक टेक्निक के बारे में बात करते हैं विच इज़ इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस. इसे हम लोग जीन नॉकआउट भी कहते हैं. सो जो एक टारगेटिंग वेक्टर होता है जिसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं जिनका एक सेंट्रल फंक्शनल रीजन होता है जीन का, इसे रिप्लेस कर देते हैं विद द ड्रग रेजिस्टेंस जीन और इसे हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में ट्रांसफेक्ट करते हैं एंड इट इज सेलेक्टेड बाय ड्रग एक्सपोजर. सो बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन अ फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल हैव वन कॉपी ऑफ ओरिजिनल जीन रिप्लेस्ड विद द ऑल्टर्ड फॉर्म. So these cells are injected into the inner cell mass of the blastocyst. All right. So these cells are injected into the inner cell mass of the blastocyst. और resultant जो chimeric mice होता है, it gives rise to heterozygous mutants which can breed to generate mutant homozygotes. All right.
सो ये टेक्निक है इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस की, जीन नॉकआउट की। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो जीन फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर हमको चेक करना है तो ट्रांसजेनिक माउस हम बनाएंगे। ऑल राइट, तो जीन फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर हमको चेक करना है तो हम ट्रांसजेनिक माउस बनाएंगे। सो या जीन नॉकआउट माउस बनाएंगे। तो जो ट्रांसजेनिक होता है उसमें इंजेक्शन करते हैं हम लोग डीएनए का। सो injection of the DNA to the fertilized egg, and we alter or add a gene to the genome of the embryonic cell. So embryonic cell जो होती है, so यहाँ पे जीन का ट्रांसफेक्शन करते हैं। we insert randomly by homologous recombination. So म्यूटेंट सेल जो होती है वो इनएक्टिव जीन होती है और वहाँ पे जीन नॉकआउट हम लोग करते हैं। So it randomly insert to the blastocyst and usually altered the gene function but not the knockout gene. So why embryonic cells are used? So because they are less umber cell which affect the body and they can produce germ cell. So embryonic cell micro injection से हम लोग कर सकते हैं। Okay. सो ये जी नॉकआउट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्री लॉक्स पी सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग। सो क्री एक डीएनए रिकॉम्बिनेस है, लॉक्स पी 34 बेस पेयर की साइड्स हैं, तो क्री रिकग्नाइज करता है लॉक्स पी साइड को। और जो दोनों ही केस में हो रहा है विच इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड विच इज़ टिश्यू स्पेसिफिक, सो बोथ साइड्स दे इंसर्ट लॉक्स पी टू द टारगेट जीन जो कि ट्रांसजेनिक माउस है और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है और क्री जो एक्सप्रेस करता है लॉक्स पी। सो ऑल नॉकआउट प्रोड्यूस होते हैं। सो विद द टिश्यू स्पेसिफिक जीन टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होता है क्री का। ओके, सो वी कट द स्पेसिफिक लॉक्स पी साइड, सो टिश्यू स्पेसिफिक नॉकआउट क्री टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर होता है। ऑल राइट, तो ये क्री लॉक सिस्टम है, ये इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इसके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ऑल राइट, सो ये लॉक्स क्री रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है जो कि नॉकआउट कर देता है जीन को। सो ये लॉक्स पी माउस है, ठीक है, और ये क्री माउस है। सो ये लॉक्स पी के साइड्स हैं एंड दिस इज़ द सेल स्पेसिफिक प्रोमोटर।
So this is the cells expressing Cre, and these are the cells not expressing Cre. Okay, so LOXP is inserted on each side of the target gene, and it produces a chimera. So chimera mice mating with another chimera mice. So it produced LOP X plus Cre mice. Okay, so there is LOXP plus Cre, which is the specific knockout. Then there is LOXP plus normal, where nothing happens, and then there is no LOXP where nothing has happened. So with cell type specific promoter, it produces tissue specific knockout. Okay. So Cre-Lox system can create knockout genes. So ये एग्ज़ाम में कई बार आता है. तो हम लोग हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन कैसे ऑल्टर कर सकते हैं. ओके, तो जीन नॉकआउट एक्सप्रेशन से क्या होगा, म्यूटेंट्स प्रोड्यूस होंगे. तो यहाँ पे रिडंडेंसी है, जहाँ पे मिसिंग जीन कैन बी एटलीस्ट पार्शियली कंपनसेटेड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेटेड जीन. सो जो पैरालॉगस जीन है फ्रॉम अनदर हॉक्स कॉम्प्लेक्स, दे में कंपनसेट फॉर द जीन लॉस. सो होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट होता है फ्रॉम हॉक्स जीन लॉस. सो फॉर रिप्लेस बाय अनदर हॉक्स जीन एक्सप्रेशन, different and specific tissues are used. So loss lead to cell assuming a more anterior value, and the loss of one Hox gene, a more anterior tissue is expressed. So abnormal expression of Hox gene in anterior tissue leads to tissue becoming more like posterior position tissues. Okay. So यहाँ पे है altering of Hox gene expression which alters the axial patterning. सो गाइज थैंक यू सो मच. अभी के लिए इतना इज़ सफिशिएंट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारी चीज़ें लेकर आएंगे. ऑल राइट, सो थैंक यू गाइज. थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone for your time. If you have any questions, you can post it in the comment box and we will reply. And guys, please like, share and subscribe to this channel and press the bell icon. And don't forget to use my referral code. My referral code is HY10, so you'll be getting 10% off on the next Unacademy subscription. All right. So thank you guys. Thank you everyone.